ओके स्टूडेंट्स, अब हम पढ़ेंगे मिसलेनियस एक्सरसाइज सो दैट द फंक्शन। पहला क्वेश्चन तो आप अप्रॉक्सीमेशन से कर लेंगे। मैं दूसरा बता रहा हूँ, मैं ऐसे कुछ छोड़ छोड़ के क्वेश्चन बताऊँगा, जो इंपॉर्टेंट होंगे वही बाकी सब आप लगाएंगे। कह रहा सो दैट द फंक्शन इज गिवन बाई एफ एक्स इज इक्वल टू लॉग एक्स अपॉन एक्स हैज़ अ मैक्सिमम एट एक्स इज इक्वल टू ई। तो मैक्सिमम मिनिमम के लिए आपको फंक्शन को दो बार डिफ्रेंशिएट करना है, ये आपको पता है। देखिए कैसे करेंगे। तो सबसे पहले हम नोट कर लेते हैं सेकेंड नंबर, लेट एफ एक्स इज इक्वल टू लॉग एक्स होल अपॉन एक्स। इसको हमें डिफ्रेंशिएट करना है। देन एफ डैश एक्स इज इक्वल टू सेकेंड डी वाई डी एक्स ऑफ फर्स्ट माइनस फर्स्ट and dy dx of second whole upon x square. It means 1 minus log x upon x square. That is the function f dash x. And now again differentiation, f double dash x is equal to second into differentiation of first minus 1 minus log x into 2x and whole upon x power 4. X cancel out, then minus x minus 2x plus 2x into log x and whole upon x power 4. That is the value of minus 3x and plus 2x into log x and whole upon x power 4. So now f dash x is equal to 0 for maxima and minima. It means 1 minus log x is equal to 0 या log x is equal to 1. Then x is equal to e. ओके, तो x की वैल्यू यहाँ पर e आ जाती है। अगर e की वैल्यू यहाँ रखेंगे तो यहाँ पर जो वैल्यू आ जाएगी वो हो जाएगी आपके नेगेटिव। इट मीन्स नेगेटिव है तो मैक्सिमम आपका प्रूव्ड हो गया। दैट्स ओके। एंड नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, and question number third is two equal sides of an isosceles triangle with the fixed base b are the decreasing at the rate 3 centimeter per second. This question is on exercise 4.1, sorry 6.1, at rate of change. So 3 centimeter per second, it means dx upon dt is equal to 3 centimeter per second. And how fast the area is decreasing when the two equal sides are equal to the base. So now draw a triangle. This point is A, B and C, and there is base is B, and now the other side is X and X. So therefore the side is decreasing at the rate of time is dx upon dt is equal to minus 3 centimeter per second. How fast the area? So we have now draw a line perpendicular to a T. So find the value of this AD. AD is equal to, by using PGT theorem, x square minus b square by 4, because this line is b by 2 and this line is b by 2. That is the AD, and it means under root AD. So area of triangle 1 by 2 base into height, x square b square by 4. So solve it. So dA upon dt is equal to b by 2 and differentiation of under root 1 upon 2 under root x square minus b square by 4 into 2x. 2 and 2 cancel out and x derivative is dx by dt. So minus का 3bx whole upon 2 under root
एक्स स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बाई 4, dx by dt is a minus 3. So according to the condition, then base is equal to the side, so minus 3b square whole upon 2b square minus b square by 4. So therefore minus 3b square upon 2 root 3b by 2, 2 cancel out and b cancel out, there is minus root 3b. That is the answer. Okay, now next question, question number 4. Question number 4 is find the equation of normal to the curve x square equal to 4y which passes through the point 1 2. मैं आपको बता चुका हूँ टेंजेंट नॉर्मल में कि अगर विच पासिस थ्रू द पॉइंट है और एट अ पॉइंट है, दोनों में जस्ट थोड़ा सा अंतर है और आपको उसी के अकॉर्डिंग क्वेश्चन करना है. इक्वेशन ऑफ नॉर्मल निकालने हैं. क्वेश्चन नंबर 4 है, जबकि इक्वेशन दी गई है एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 4y. ये कोई कर्व है, ये इसका जो नॉर्मल है वो नॉर्मल की जो लाइन है वो 1 2 से पास हो रही है. तो इस कर्व के पॉइंट नहीं पता है, तो इसलिए हम मान लेते हैं x1 y1 बी द पॉइंट ऑन कर्व 1. इस इक्वेशन को वेरीफाई करा दीजिए, ये हो जाएगी दूसरी इक्वेशन. इसका डिफ्रेंशिएशन 2x इज इक्वल टू 4 dy बाई dx या dy बाई dx इज इक्वल टू x बाई 2. सो दैट इज a normal is equal to minus 2 upon x. So equation of normal y minus y1 is equal to minus 2 by x1 into x minus x1. This is the equation of normal and this line is passing through the point 1 2. अब ये लाइन को 1 और 2 से पास कराइए. प्रोडक्ट कर लेंगे 2x1 माइनस x1 y1 इज इक्वल टू माइनस 2 प्लस 2x1. 2x1 कैंसिल आउट, देन x1 y1 इज इक्वल टू 2. y1 की वैल्यू उठाकर यहाँ से यहाँ रख देंगे. x1 क्यूब बाई 4 इज इक्वल टू 2, देन x1 क्यूब इज इक्वल टू 8, x1 इज इक्वल टू 2 एंड y1 इज इक्वल टू 1. तो पॉइंट मिल गए. अब आप इससे लाइन की इक्वेशन निकाल सकते हैं. y माइनस 1 इज इक्वल टू 1 माइनस का x माइनस 2. y माइनस 1 इज इक्वल टू माइनस एक्स प्लस 2, एक्स प्लस वाई इज इक्वल टू 3. ये इसका फाइनल आंसर आ जाएगा. ठीक, आगे देखते हैं. नेक्स्ट क्वेश्चन भी इसी तरह से है, आप इनको लगाएंगे. क्वेश्चन नंबर 5 में कह रहा है सेम पॉइंट्स दिया गया है. सबसे पहले पॉइंट नोट कर लें. x इज इक्वल टू है a cos थीटा प्लस a sin थीटा, y इज इक्वल टू a sin थीटा a थीटा cos थीटा इज ए कांस्टेंट डिस्टेंस फ्रॉम द ओरिजिन. हमें ये निकालना. तो नॉर्मल की इक्वेशन निकालनी है. इसमें भी एट पॉइंट दिया गया है, तो पॉइंट जो है वो पहले नोट करेंगे. a cos थीटा प्लस a sin a थीटा sin थीटा एंड y इज इक्वल टू a sin थीटा माइनस a थीटा cos थीटा. पॉइंट आपको पता है. अब आपको यहाँ से dy बाई dx निकालना पड़ेगा. तो चलिए dx अपॉन डी थीटा फाइंड करें. सो a माइनस का sin थीटा प्लस a थीटा cos थीटा प्लस sin थीटा, ब्रैकेट खोलेंगे तो ये टर्म इससे कैंसिल हो जाएगा. तो यहाँ पर बच जाएगा
a theta cos theta. This is dx by dt. Similarly, dy by d theta is equal to a cos theta minus a cos theta minus plus a sin theta. ये भी इससे कट जाएगा, वैल्यू रखती डिवाइड कर लिया तो dy बाई डी एक्स जो आ जाएगा वो a थीटा साइन थीटा अपॉन a थीटा कॉस थीटा, ये दोनों कट गए तो यहाँ बचेगा साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा। तो नॉर्मल जो हो जाएगी इसकी माइनस कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा। इक्वेशन निकाल लीजिए, इक्वेशन क्या होगी उसको देखेंगे। y माइनस a साइन थीटा माइनस a थीटा कॉस थीटा इज इक्वल टू माइनस कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा इंटू एक्स माइनस a कॉस थीटा प्लस a थीटा साइन थीटा। ठीक, सिंप्लीफाई कर लीजिए तो ये हो जाएगा y साइन थीटा माइनस a साइन स्क्वायर थीटा प्लस a थीटा साइन थीटा कॉस थीटा इज इक्वल टू माइनस x कॉस थीटा प्लस a कॉस स्क्वायर थीटा माइनस a थीटा साइन थीटा इंटू कॉस थीटा। ये दोनों तरफ से कैंसिल हो जाएगा, इसको इधर ले आएंगे x कॉस थीटा प्लस y साइन थीटा और ये भी इधर आया तो माइनस कॉमन ले लिया तो साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 0। ये 1 के बराबर, तो इक्वेशन जो आ जाएगी आपकी कुछ इस तरह के फॉर्म में मिल जाएगी। अब हमें डिस्टेंस निकालना है ओरिजिन से, तो ये जीरो तो माइनस का a अपॉन अंडर रूट कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा जो कि 1 हो गया, तो d इज इक्वल टू मॉड ऑफ माइनस a यानी d इज इक्वल टू कॉन्स्टेंट आपका ये आ जाएगा, a इज ए कॉन्स्टेंट दैट प्रूव्ड। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन आप कर ही लेंगे, छठवां पीछे आप एक्सरसाइज में जाकर देखेंगे 7वां या 9वां क्वेश्चन आपको दिया गया है, यही क्वेश्चन सेम टू सेम आप ये करेंगे 8वां नंबर। क्वेश्चन नंबर 8 है, कह रहा है फाइंड द मैक्सिमम एरिया ऑफ द आइसोसेलेस ट्रायंगल इंस्क्राइब्ड इन एलिप्स। एलिप्स का इक्वेशन है एक्स स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर इज इक्वल टू 1। हम सबसे पहले एक डायग्राम बनाएंगे, ये कुछ इस तरह से एलिप्स जिसके इसके कंपोनेंट a0 इसके 0। हमने यहाँ से एक राइट एंगल ट्रायंगल इस तरह से आइसोसेलेस ट्रायंगल ड्रॉ कर लिया। अब पैरामेट्रिक इक्वेशन हमेशा याद रखेंगे, इसके a cos थीटा और b sin थीटा होते हैं। तो ये आपका ओरिजिन है तो 0 0, इसको a b c d एंड o, ये पूरी यहाँ से यहाँ तक की लेंथ a है। तो हमें अगर सी डी निकालना है तो सी डी इज इक्वल हमें सी डी निकालना है तो ओ सी माइनस ओ डी, तो ये है a माइनस a कॉस थीटा यानी a कॉमन आ गया तो 1 माइनस कॉस। ये b साइन थीटा है तो पूरी ए बी जो हो गई 2b साइन थीटा हो गया। तो एरिया जो निकलेगा ट्रायंगल का 1/2 बेस इंटू हाइट रख दिया, 2 से 2 कट गया और थीटा के रिस्पेक्ट में 2 बार डिफ्रेंशिएट कर लिया। ए भी तो हमने बाहर रखा साइन थीटा और इसका डिफ्रेंशिएशन भी
साइन थीटा प्लस 1 माइनस कॉस थीटा इंटू कॉस थीटा, या और ए डैश इज इक्वल टू ए बी, ये हो जाएगा साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस थीटा माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। ये कॉस के टर्म में है, ये कॉस के टर्म में है, तो इसको भी कॉस के टर्म में कन्वर्ट करना है। तो अगेन डिफ्रेंशिएशन करने से पहले इसको और सिंप्लीफाई कर लीजिए। और 2 बार डिफ्रेंशिएट करेंगे। मैक्सिमम में हमेशा आपको 2 बार डिफ्रेंशिएशन करना होगा। अब यहाँ पर एंगल आपका बढ़ रहा है, तो ये एंगल ज़्यादा बड़ा है, ये एंगल छोटा हो जाएगा, तो फिर 2 थीटा हो जाएगा, तो इसलिए वैल्यू नेगेटिव है, तो इसलिए हम यहाँ पर मैक्सिमम लिखेंगे। और मैक्सिमम मिनिमम फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव इज 0, यानी 2 cos स्क्वायर थीटा माइनस कॉस थीटा माइनस 1 बराबर 0। इसका फैक्टर कर लीजिए। इसके जो फैक्टर मिलेंगे आपको, 2 cos स्क्वायर थीटा माइनस 2 cos थीटा प्लस कॉस थीटा माइनस 1 बराबर 0। तो 2 cos थीटा कॉमन, देन cos थीटा माइनस 1 प्लस 1 कॉमन, देन cos थीटा माइनस 1 बराबर 0। तो कॉस की 2 वैल्यू मिल जाएगी, एक मिलेगी 1 और एक मिलेगी माइनस का 1 वैल्यू। 1 वैल्यू अगर आप यहाँ रख देंगे तो ये 0 हो जाएगा, इसलिए 1 को हम निगलेक्ट कर देंगे। तो हमारी कॉस की जो वैल्यू आ गई वो क्या आ गई, 1/2। ये सीधे उठाकर एरिया में रख देगा। साइन को चेंज कर लें। यहाँ पर जब रखेंगे तो ये हो जाएगा रूट का 3/2, और यहाँ पर रख देंगे ये हो जाएगा 3/2। तो 3√3ab/4, दैट इज आंसर। ओके, तो इस तरह से इस क्वेश्चन को भी करना है। अगला क्वेश्चन भी जाते हैं, हम देखते हैं और फिर आगे बढ़ते हैं। अब डेरिवेटिव आप खुद करिए, अगर जहाँ नहीं आए तो मुझसे ज़रूर पूछ लीजिएगा। मैं अब आपको शॉर्ट में क्वेश्चन बताऊंगा, उसी तरह से आप लगा। मैं अब आपको इक्वेशन बना के दूंगा, बाकी मैक्सिमम आपको करना है। 9 नंबर, अ टैंक विद अ रेक्टेंगुलर बेस एंड द साइड इज ओपन, द टॉप टू बी कंस्ट्रक्ट, डेप्थ इज 2 मीटर। मतलब हाइट जो दी गई है वो 2 मीटर दी गई, और जो वॉल्यूम है वो 8 मीटर क्यूब दिया गया। तो वॉल्यूम बी बराबर हो जाएगा XYH। यहाँ रख दिया 8, देन XY इंटू 2, XY इज इक्वल टू आगे 4 मीटर स्क्वायर। अब कह रहा बिल्डिंग जो टैंक बनाने में कॉस्ट है, कॉस्ट 70 रुपीज़ पर मीटर स्क्वायर फॉर द बेस, 70 इंटू XY प्लस एरिया ऑफ 4 वॉल्स, तो इंटू 4 इंटू एक्स प्लस वाई। तो यहाँ पर एक्स वाई की वैल्यू 4 है, तो 7 चौक 28, 280 हो गया, प्लस 9 दूनी 18, 180 इंटू एक्स प्लस 4/x हो गया। अब इसको 2 बार डिफ्रेंशिएट कर लीजिए, तो ये तो 0 हो गया। 181 माइनस 4/x, अगेन डिफ्रेंशिएशन, 180 इंटू एक्स स्क्वायर, देन 8/x। ये पूरी वैल्यू कैसी आई, पॉजिटिव आई, इसलिए मैक्स मिनिमम हो जाएगा। तो इसको 0 करेंगे तो 1 माइनस 4/x स्क्वायर बराबर 0, देन एक्स स्क्वायर बराबर 4, तो एक्स बराबर 2, तो वाई बराबर आल्फा। कॉस निकालना है, तो 280 प्लस 180 इंटू 2 प्लस 2, 280 प्लस 180 हो गए 4, 18 चौक 72, 280 प्लस 720 यानी 1000 रुपये ये लागत आ जाएगी। ठीक, और भी अगला है वो आप करें, कोशिश करेंगे। मैं अब इक्वेशन बना रहा हूँ।
कह रहा सम ऑफ द पेरीमीटर ऑफ सर्किल एंड स्क्वायर इज के। सर्किल यानी सर्किल का पेरीमीटर होता है 2πr प्लस स्क्वायर का पेरीमीटर होगा 2x प्लस वाई 4x is equal to k. And the sum of area of circle pi r square plus a x square। तो यहाँ से x की वैल्यू उठाकर यहाँ r की वैल्यू भी रख सकते हैं, x के टर्म में जो रखना x की वैल्यू आ जाएगी a माइनस 2πr अपॉन 4 का 4 या पाई आर स्क्वायर प्लस 1/16 के माइनस 2πr का होल स्क्वायर। अब इसको दो बार डिफ्रेंशिएट करना, वैल्यू निकालनी के की और यहाँ रख देंगे तो आपका आंसर। चलिए मैं कर दे रहा हूँ। अब इसके आगे आप 2πr हो गया 2/16 इंटू के माइनस 2πr माइनस का 2π। अगेन डिफ्रेंशिएशन कर दिया मैंने तो 2π हो गया प्लस माइनस माइनस अगेन ये हो जाएगा 2/16 इंटू 4π स्क्वायर। ये भी पूरा पॉजिटिव है तो इसलिए ये मिनिमम हो गया। जब मिनिमम हो गया तो आगे हम इसको दिखाना नहीं, इतना प्रूफ हो गया। अब हम इसको सॉल्व कर ले। a डैश इज इक्वल टू 0 तो 2πr इज इक्वल टू ये इससे कट जाएगा, ये भी इससे कट जाएगा, बचेगा 4। सो k माइनस 2πr इंटू पाई अपॉन 4। पाई से पाई कट जाएगा, 4 इधर आ गया, 8r बराबर k माइनस 2πr। k माइनस 2πr या k बराबर 8r प्लस 2πr। k की वैल्यू उठाकर पहले में रख दी 2πr प्लस 4x इज इक्वल टू 8r प्लस 2πr। 2πr से 2πr कट गया, 4x बराबर 8r देन x बराबर 2r। यही प्रूव करना था कि इसकी जो साइड होगी वो जस्ट डबल होगी रेडियस के। ठीक है, इतने क्वेश्चन आज के लिए हो गए, बाकी नेक्स्ट